Hello everyone, welcome to Think IAS and welcome to our weekly essay decode series. In this series, we are going to discuss various PYQs starting from 2023 onwards, 2022 and 2021, and if time permits, we'll also go to 2020. We know that every year we get 8 essay topics. So with this, we are going to cover at least 24 to 32 topics. What are we going to do? We are going to look at the meaning, different approaches which can be followed, okay, what dimensions can be written, and different ways to articulate, structure and maintain the flow in the essay. We are going to do a lot of things and you don't have to come with any prerequisite. You just have to keep an inquisitive mind and nothing else. There is no prerequisite that okay, you have to remember a lot of facts, lot of examples, you have to be well read. No, you just have to be inquisitive and you have to keep practicing your own style of writing, and we will be able to achieve our goal of scoring high marks in essay paper. Today is the orientation session. So in this session we are just going to have an overview on the demand of the topic, and that is it. We are going to see how we are going to how we can actually structure an essay, what all components must go, what all mistakes should we avoid, and things like that. Okay, so let's begin with understanding the essay paper. So in UPSC we get 2 essays to write and total time is 3 hours. Every essay is for 125 marks, so the essay paper is for 250 marks. Word limit is 1000 to 1200. So depending upon our font size, we can move between 9 to 10, 11 pages we have to write approximately for every essay. Okay? Now marks. Now marks, we are all interested in this. See, essay paper is very scoring, and as compared to GS paper, it can fetch you very high marks. We have seen toppers scoring as high as 160, even 150, even 160. So we can see that it has a very high return on investment. You don't have to read a lot, you don't have to cram a lot of things, remember a lot of facts. You just have to develop a skill, and this takes time because it is always better when it is developed gradually. It will be intrinsic, it will not be exposed from some external way. So obviously it will take time, but it will also give you a lot of return. And if we want to be realistic, essay paper is very high scoring. If you compare it with GS, scoring marks like 110, 120 requires a lot of content, lot of effort, reading, writing, remembering. But in essay paper, this much effort is not required. There are some tips and tricks with which you can easily score an average score of 110 to 120 and even a high score of 150 to 160. So with this objective in mind, let's understand the demands of the essay paper. See, essay paper requires a holistic preparation, but I am not going to say that okay, today you go and every month you have to read at least one new book. No, you don't have to do all that, because I understand as a UPSC CSC aspirant you already read so much that you are fed up of reading, right? But most of us do read newspapers on a daily basis, we do watch movies, and we do this also. We go in our free time and watch YouTube and Insta shorts. And if we have this good habit of reading books, then it is excellent, because this will give you an edge. You will definitely be very ahead in your articulation. But even if you are not reading books, it's not required. No matter what you are doing, even if you are reading newspapers, movies, YouTube, Insta shorts, you just have to focus and be very inquisitive and carry a very wide perspective. Even if you are
talking to your friends or talking to your grandparents, you can inculcate their life stories and their experiences also in your essay. This is the beauty of the essay paper. But obviously there are some habits which will help you in fetching good marks, and these are the habits which can be developed gradually. You read newspaper, and every day you come across different editorials, whether you read Hindu or Indian Express, obviously, and you have, and like say daily you have 4 editorials. 2 of them are important from the point of view of exam, 2 of them are not so important from exam point of view from GS papers, but every editorial has different style of writing. So obviously you can read just for the sake of reading and see how differently people write and what all can you inculcate in yourself so that you can also write in a better manner. Next we come to previous topper copy analysis. See, every topper is very different. Some topper you will see they have excellent knowledge base, right? Some topper you will see they have very good vocabulary. Some are very good in articulation, ठीक है? Some are good in all of the above. So what you can do is you can simply read and analyze topper copies and simply सी कि उसमें से आप क्या चीज़ अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो. किसी का मानिए फ़्लो मेंटेन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है और आपको वो अच्छा लग गया, तो वो चीज़ आप अपने में इनकलकेट कर सकते हो, ठीक है. वी इन दिस वीकली ऐसे डीकोड प्रोग्राम ऑल्सो वी आर गोइंग टू select few of the very good topper copies and we will decode कि उन्होंने उनका क्या अच्छा है और क्या हम easily replicate अपने भी कॉपी में कर सकते हैं. But ultimately you cannot, you should not and you cannot replicate the entire thing, ठीक है, क्योंकि essay क्या होता है, essay needs to be a reflection of you कि आपने उस टॉपिक से क्या समझा है, आप उस टॉपिक को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में अप्लाई कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली ये आपका टॉपिक होना चाहिए और इसी तरह से आपको ऐसे में आगे प्रोसीड करना चाहिए. नाउ अभी हमें पता है कि एवरी ऐसे गिव्स यू 1.5 आवर्स हर टॉपिक में आपको होता है. इसमें आप थोड़ा प्लान करते हो और फिर लिखना शुरू करते हो. प्लानिंग में यू कैन स्पेंड अराउंड 15 to 30 मिनट्स. अब इतना लंबा रेंज क्यों है, बिकॉज सी हम लोग डिफरेंट हमारा टैलेंट होता है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर वेरी गुड इन आर्टिकुलेशन, दे जस्ट नीड एन आइडिया और जैसे ही आइडिया आता है दे आर एबल टू आर्टिकुलेट इट वेरी वेल. सम पीपल आर अ लिटिल वीक इन आर्टिकुलेशन, थोड़ा उनको टाइम लगता है वर्ड सोचने में, फ्लो मेंटेन करने में. तो अगर आप वीक हैं आर्टिकुलेशन में तो उस केस में आप अपने प्लानिंग वाले टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए और लिखने वाले टाइम को थोड़ा बढ़ा दीजिए. अब ये कितना करना है, से आप 20 मिनट्स का प्लानिंग कर रहे हो एंड 1 आवर 10 मिनट्स का आप लिख रहे हो, तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा कि आपको लिखने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ कि जैसे अगर आप इफ़ यू आस्क मी आई एम गुड इन टॉपिक्स रिलेटेड टू विमेन एम्पावरमेंट, सोसाइटी एंड फिलोसफिकल ऑल्सो, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो आई यूजुअली स्किप सर्च टॉपिक्स. बट यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है. ऐसा भी हो सकता है देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजिकल टॉपिक, तो उस केस में ऑब्वियसली टॉपिक सिलेक्शन में इट विल हेल्प यू, है ना. टॉपिक सिलेक्शन आप टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक टाइप टॉपिक का आप कर सकते हो. एट द सेम टाइम आप फिलोसफिकल टॉपिक में टेक्नोलॉजिकल इंट्रो दे सकते हो, ठीक है. तो अपने आप को समझना, अपना इंटरेस्ट समझना, अपना स्ट्रेंथ समझना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सॉरी. फिर अब हम आते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं एस्से में. अब देखो एस्से में देयर इज़ नो राइट अप्रोच कि कोई अगर आपको बता दे कि देखो दोस्तों ऐसे ही एस्से लिखना है, नो. एस्से में अच्छी बात ये होती है कि बहुत क्रिएटिव फ्रीडम होती है, ठीक है. तो कुछ ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, बट एट द सेम टाइम कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में या कम नॉलेज की वजह से कुछ गलतियां कर जाते हैं. लेट्स सी व्हाट. पहली जो गलती होती है जब हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मिस इंटरप्रिटेशन या नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम
ये दो टॉपिक्स हैं हमारे, ये PYQ के ही टॉपिक्स हैं। इनको अगर हम लेते हैं तो देखो पहला टॉपिक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। लेट्स सी, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। पॉज द वीडियो, थिंक इस टॉपिक का क्या मतलब है, ठीक है। ओके, सो अगर आपने इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया है, इसमें कुछ बच्चे ऐसा लिख के आएंगे कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़, फॉरेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एक्सीलेंस। इसमें इको टूरिज़म, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप चीज़ें अगर आप लिख के आ रहे हो तो ये मेरे हिसाब से टॉपिक का इंटरप्रिटेशन गलत है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे बात हो रही है केस स्टडीज़ की। केस स्टडीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वी आर रेप्लिकेटिंग, वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट। हम किस तरह से फॉरेस्ट से सीख सकते हैं, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको सीख के हम कैसे अपने इकोनॉमिक मॉडल्स में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिक मॉडल रॉबस्ट, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बने। दोनों में बहुत अंतर है एंड दिस इज़ हाउ यू, इफ़ अगर आपने जल्दबाजी में इसको मिस इंटरप्रेट किया है तो इस तरह से आपको इसका वाइड मतलब हर कीवर्ड को अच्छे से सोचना है कि ये ज़बरदस्ती तो केस स्टडीज़ नहीं दे दिया होगा, ज़बरदस्ती तो बेस्ट नहीं लिख दिया होगा, कुछ तो रीज़न होगा एंड व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दैट। तो ये हो गया आपका टॉपिक 1, जिसको आप हो सकता है कि गलत इंटरप्रेट करो, मिस इंटरप्रेट करो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, पेट्रियार्की इज़ द लीस्ट नोटिस्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर सोशल इनइक्वालिटी। ये आपका 2020 का टॉपिक है सॉरी, एंड ये आपका 2022 का टॉपिक है। तो उस केस में देखो इसमें ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इसमें जाके बस पेट्रियार्की के बारे में लिख रहे हो कि भाई पेट्रियार्की ये है एंड हाउ इट इज़ लीडिंग टू सोशल इनइक्वालिटी। ऐसा हो सकता है कि इसमें आप एग्जाम्पल्स डालो, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एग्जाम्पल ऑफ रेप, है ना, या कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है फीमेल का वो काफ़ी कम हो गया है या कम है, ठीक है, ट्रेडिशनली भी। तो उस केस में अब ये एग्जाम्पल्स गलत नहीं है, बट ये एग्जाम्पल्स एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट नोटिस्ड की, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो आप बता ही दोगे कि भाई वो सिग्निफिकेंट क्यों है, बट चूज़ द एग्जाम्पल्स विच आर नॉट डायरेक्टली नोटिसेबल। ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे, ये बहुत टैंजिबल हैं, ये डायरेक्टली नोटिसेबल हैं, है ना। यहाँ पे बल्कि आपको ये एग्जाम्पल्स ना लिख के वो एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो हिडन है, हिडन पेट्रियार्की। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हम लोग मजाक उड़ाते हैं कभी कभी ऐसे ही बहुत लूज टर्म में बोल देते हैं कि अरे फीमेल आर नॉट गुड ड्राइवर्स, है ना। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने एक तो स्टीरियोटाइप इन्फोर्स कर रहे हैं, दूसरा हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि फ़ीमेल अगर बुरी ड्राइवर हैं, अगर कोई है भी तो वो क्यों है। वो इसलिए हो सकता है कि जैसे ड्राइविंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक जो मेल चाइल्ड है वो शायद स्कूल में ही से ही उनको बाइक या कार का एक्सेस मिल जाता है, उनके पास ड्राइविंग की काफ़ी प्रैक्टिस होती है। फ़ीमेल ऑन द अदर हैंड हो सकता है उनको काफ़ी लेट अपने लाइफ में बाइक, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का एक्सेस मिले, तो ऑब्वियसली इट विल गिव देम लेस टाइम टू प्रैक्टिस। तो मतलब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बट इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आने हैं, इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी। इसमें हिडन पेट्रियार्की टाइप एग्जाम्पल्स आप पहले लाओ, आप ये वाले एग्जाम्पल्स भी लेके आ सकते हो, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इस पे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने गड़बड़ जल्दीबाजी में नैरो इंटरप्रेट कर दिया टॉपिक को और जो डिमांड थी उसको एग्जैक्टली मीट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल सेंट्रिक। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक देखा, एकदम से दिमाग में आया ओ इसमें मैं बुद्धा से शुरू कर दूंगी और फिर मैं इसमें ये रामायण वाली कहानी लिखूंगी, इसमें मैं एनवायरनमेंट का ये वाला एंगल लिखूंगी, क्योटो लिखूंगी एंड ऐसे। तो ये तरीका सही नहीं है। एस्से में एग्जाम्पल सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, एस्से शुड बी आइडिया सेंट्रिक। जनरली भी अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज़ जस्ट टू
सब्सटैंशिएट, है ना, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ सिर्फ एग्जाम्पल सेंट्रिक थोड़ी ना होती है, एग्जाम्पल से आप सब्सटैंशिएट करते हो, आइडिया पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो ये जो आइडिया है ऐसे इसके सेंटर्ड, इसके अराउंड सेंटर्ड होना चाहिए। ये आइडिया क्या है, वी विल डिस्कस दिस वेरी वेरी डीपली इन आवर सीरीज, ठीक है, बट अभी के लिए दिस यू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, पेस्टल थोड़ा नैरो डायमेंशन हो जाता है, वही चीज़ की एग्जाम्पल लिया, उठाया, पॉलिटिकल स्फेयर में ऐसा है, इकोनॉमिक में ऐसा है, सोशल में ऐसा है, तो ये थोड़ा मंडेन मतलब थोड़ा मोनोटनस लगता है, थोड़ा सा नैरो लगता है, बट ठीक है, मतलब फिर भी आई विल स्टिल कॉल दिस एज अ मिस्टेक, क्योंकि इससे अच्छा आप कर सकते हो। देन नेगेटिव टोन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टोन ऐसे में नहीं रखनी है, बैलेंस्ड और पॉजिटिव टोन होनी चाहिए। लास्ट में आप एक पैराग्राफ डाल सकते हो जिसमें आप चैलेंजेस लिखो, यहाँ पे आप टोन को नेगेटिव रख सकते हो, बट ओवरऑल टोन शुड बी बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव। स्ट्रक्चर, बेकार स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे गए, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया, फिर नेशनल लेवल पे चले गए, फिर एकदम से फिर से किसी इंडिविजुअल लेवल लीडर का एग्जाम्पल देने लगे कि भगत सिंह ने भी ऐसे किया था, तो ये एक इल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। फ्लो एट द सेम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने स्टार्ट किया एक पैराग्राफ और फिर फ्लो में आपने शुरू कर दिया कि हाँ हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसके ये रीजंस हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, और इस तरह से आप अपना ऐसे का फ्लो मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है, इससे बेटर आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन जब मैं ये बोल रही हूँ दीज आर कॉमन मिस्टेक्स, मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऐसे में अगेन बहुत सारा फ्रीडम होता है, आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है, बट एट द सेम टाइम ये सब अवॉइड करके आप अपने मार्क्स को थोड़ा और एनहांस कर सकते हो, इन माय ओपिनियन, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। अब हमने मिस्टेक्स तो देख ली, तो कॉम्पोनेंट्स में ये मैं इनको बोलूँगी दीज आर द गोल्डन कॉम्पोनेंट्स। आप किसी भी ऐसे में इसको जब इस तरह से अपने ऐसे को खोलोगे, इस तरह से अपने ऐसे को ब्रेक करोगे, तो आपके पास इतना सारा मैटर होगा लिखने को कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं 10 पेजेस भरूँ कैसे, ठीक है। तो इंट्रो में आप 1.5 पेजेस डालते हो। हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोज इन आर सब्सिक्वेंट सीरीज़, बट अभी तो ये ओरिएंटेशन है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। फिर आप व्हाट कंपोनेंट डालते हो, व्हाट का मतलब होता है मीनिंग, कीवर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हो। फिर आप वाई कंपोनेंट डालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फॉर फिलोसफिकल एस्से। ये यूजुअली सब स्किप कर जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मानो कोई प्लेटो है, सोक्रेटिस हैं, वो कुछ कह के चले गए हैं, तो उसको कहने के पीछे एक रीज़न होता है, एक रीज़न होता है जो या तो वो बताते हैं या तो वो आपको इनकलकेट करते हैं कि उस रीज़न को सोचो आप और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो वो रीज़न अपने ऐसे में लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या है, कैसे है, थोड़ा और डिटेल हम इसका बाद में देखेंगे। देन वी कम टू हाउ। हाउ आपका मेन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करता है कि भाई आपने हाँ थीसिस को डिफरेंट डायमेंशंस में लेके आए कि हाँ पॉलिटिकल ऐसा है, हिस्टोरिकली इंडिया में ऐसा देखा गया था, अलग अलग डायमेंशन से हम हाउ को सब्सटैंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद ये ऑप्शनल है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में आप लिखते हो कि थोड़े से एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं कि नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है, इसके सिवा भी चीज़ें हो जाती हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेते हो ताकि आपके ऐसे और ब्रॉड हो। बट कॉशन ये है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और हार्डली मतलब आधा या एक पेज, और इसके साथ साथ सिंथेसिस लिखना भी ज़रूरी है। सिंथेसिस मतलब कि आप वापस से एंटीथीसिस को अपने थीसिस से कनेक्ट कर रहे हो और अपने थीसिस को रीइंफोर्स कर रहे हो। देन ऑब्वियसली चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। लास्ट कंक्लूजन, एक्चुअली ये दोनों ही कंक्लूजन का पार्ट होता है कि थोड़ा सा आपने चैलेंज बता दिया, फिर आपने सोसाइटी के लिए सजेशंस बता दिए कि ये सोसाइटी में हम इनकलकेट करेंगे, तो हमारा ये वाला मतलब जो भी टॉपिक है वो हम इस पे कर पाएंगे कि ऑनेस्टी पे है तो हमें ये करना चाहिए, करेज पे है तो ये करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, जो मेन थीम है। वे फॉरवर्ड दे दिया एंड देन आपने उसका कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन में अगेन आधा पेज आर्टिस्टिक,
फ्यूचरिस्टिक और इम्प्रेसिव। ठीक है, तो ये कैसे करना है, डिफरेंट तरीके कैसे होते हैं, वील ऑल डिस्कस दिस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन बहुत तरह के होते हैं क्योंकि आपके पास क्या है, क्रिएटिव फ्रीडम। तो इंट्रोडक्शन में आप पर्सनल एक्सपीरियंस डाल सकते हो, आप स्टोरीज़ डाल सकते हो, हाइपोथेटिकल। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी वे होता है। और अगर आपको लिखना आ गया तो दिस एक्चुअली इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैक्ट कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पे ही टॉपिक स्पेसिफिक स्टोरी क्रिएट करनी है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वी विल लर्न दिस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट होता है एनेक्डोट। इसका एक आप कंपाइलेशन बना सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको 2 ऐसे आते हैं तो आप एक स्टोरी से शुरू कर लो, एक एनेक्डोट से शुरू कर लो। तो एनेक्डोट कैसे बनते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम कंपाइलेशन भी आपको शेयर करेंगे। बट अगर अभी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है तो सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर कोई अच्छा सा लीडर आया, किसी की स्टोरी के बारे में कुछ पता चला आपको, जैसे गांधी जी की स्टोरी, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कॉमन फैक्ट नहीं कि साउथ अफ्रीका ट्रेन इंसिडेंट इज़ वेरी वेरी कॉमन, कुछ यूनिक सा कि उनका जो सेलिबेसी से रिलेटेड कुछ है, उनके वेजिटेरियनिज़म से रिलेटेड कुछ है, वैसा कुछ अगर इंटरेस्टिंग आपको पता है जो सब कॉमन नॉलेज में नहीं है वो डालो। ठीक है, और इसमें से भी ना आपको पूरा रटना नहीं है, सिंपल जैसे कि मानो किसी पैरालंपिक के बारे में लिखा, कोई स्टोरी कवर हुई और तो इनका नाम, इन्होंने क्या किया, इनके कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स, उसको ध्यान में रख लो और उसका एक कंपाइलेशन बना लो। और फिर इसको बार बार पढ़ोगे ना तो अपने आप आपके एसे में आपको समझ आएगा कि इसमें मैं ये वाली स्टोरी डाल सकता हूँ। ठीक है, देन वी कम टू कोट्स। अभी कोट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्यों? बिकॉज कोट्स में ऐसा रहता है कि देखो जो टॉपिक आपको मिल रहा है वो भी यूजुअली एक कोटेशन ही होता है या फ्रेज़ होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही कोट, उसको फिर से समराइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है थ्रू अ कोट। बट फिर भी ऐसा कुछ रिजिड रूल नहीं है। इफ़ यू हैव एनी कोट इन हैंड जो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल एप्टली फिट हो रहा है तो यू कैन इवन स्टार्ट विद अ कोट। ठीक है, और फिर उसके बाद बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि कोटेशन को आप बॉडी पार्ट में लिखो अपने ऐसे के, ना कि इसमें शुरू में। ठीक है, और अगर इंट्रो में लिख भी रहे हो तो कंबाइन योर कोट विद अदर फॉर्म्स, जैसे कि क्वेश्चंस के थ्रू कंबाइन कर लो, मीनिंग के थ्रू कंबाइन कर लो। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, जैसे कि डायलॉग फॉर्म में आप अपना इंट्रो लिख सकते हो, एक ड्रीम के फॉर्म में अपना इंट्रो लिख सकते हो। हम सारे इंट्रोज देखेंगे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंट्रोडक्शंस अप थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड इन एट दी स्टार्ट। अब हम छोटे कंपोनेंट्स पे आते हैं। थोड़ा आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, ओरिएंटेशन सेशन है कि ये जो व्हाट होता है ये क्या होता है, मीनिंग होता है डिफरेंट कीवर्ड्स का, और ये मीनिंग जो होता है वो वाइडेस्ट पॉसिबल होता है। ठीक है, कितना टाइम देना हो, कितना मतलब स्पेस देना होता है, आधा पेज ऑलमोस्ट। जैसे अगर बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें 3 कीवर्ड्स हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा और स्पेस लग जाए, 0.75 पेजेस लग जाए, बट बहुत ओवर नहीं करना है। फिर वेयर, कहाँ लिखना है मीनिंग, इंट्रो के बाद इंट्रो लिखो 1.5 पेज में। ठीक है, यहाँ तक आपका लगभग इंट्रो आ गया। फिर यहाँ पे आपने मीनिंग लिख दी। कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट भी डालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में डिटेल में। तो अगर आप थीसिस स्टेटमेंट डाल रहे हो तो उसके पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन आप थीसिस स्टेटमेंट लिख कैसे रहे हो। तो ये हो गया कॉम्पोनेंट। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, डिटेल थोड़ा बाद में, बट सिंपल ये काफ़ी ब्यूटिफुल टॉपिक आया था, आई थिंक 2022 का टॉपिक है ये। पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो, थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। और अभी के लिए हम टॉपिक का मीनिंग पे नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग कि अगर हमें व्हाट बताना है, मीनिंग बताना है, तो हम किसकी मीनिंग बताएंगे, पोएट्स की बताएंगे और अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स की बताएंगे। तो पोएट्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पहले हमने मीनिंग बता दी कि भाई पोएट्स वो होते हैं जो
लैंग्वेज की पावर को यूज़ करते हैं टू इवोक इमोशंस, कन्वे आइडियाज़ एंड इंस्पायर थॉट। बट पोएट, इस तरह से अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं तो पोएट डज नॉट ओनली इंक्लूड दोज इंडिविजुअल्स हु क्रिएट पोएट्री, बट दे कैन ऑल्सो इंक्लूड एनी इंडिविजुअल हु इंगेज इन क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन, जैसे कि स्टोरी टेलर, सॉन्ग राइटर, प्ले राइट, जर्नलिस्ट, एसेइस्ट, ठीक है, डांसर्स, परफॉर्मर्स, है ना, एवरीडे पीपल, मतलब कोई भी जो कि क्रिएटिव और इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज कर रहा है वो पोएट कहला सकता है। अब इसका रीज़न क्या है इतना बड़ा लिखने का? इसका रीज़न ये है कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो और आपने मानिए अपने ऐसे में सॉन्ग का एग्ज़ाम्पल दे दिया, आपने अपने ऐसे में किसी मूवी का एग्ज़ाम्पल दे दिया, किसी बुक का एग्ज़ाम्पल दे दिया जो कि फ़िक्शन है या नॉन फिक्शन भी है, तो उस केस में आप क्या बोल रहे हो? आप पोएट्स तो ऐसे बहुत रिस्ट्रिक्टिव नैरो टर्म हो गया ना, बट जब आपने पहले ही बता दिया कि इट मीन्स कि भाई क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, तो उस केस में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर्स पे। ये क्या होता है? इसका मीनिंग बता दिया और फिर इसको आपने कनेक्ट कर दिया दोनों को एक साथ, ताकि आपका टॉपिक का भी मीनिंग साथ में समराइज़ हो गया कि भाई पोएट्स जो हैं इनके पास फॉर्मल पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, बट दे कंट्रीब्यूट टू intellectual and moral development of humanity, they inspire change and they help shape the values and ideals that guide human civilization. This entire slide summarizes आपका what और topic का भी meaning आ गया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है वाई का। वाई क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस ही कर लिया। वाई मतलब होता है रीज़न। जैसे अगेन PYQ 2022 का टॉपिक है, पॉज द वीडियो, ब्रेनस्टॉर्म दिस, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे अगर आप वॉट बताएंगे तो आप शाइनिंग सन एंड रिपेयरिंग रूफ, इसका मीनिंग बताएंगे। वाई में आप बताएंगे कि क्या भाई, क्यों रिपेयरिंग रूफ, मतलब क्यों जब सन शाइन कर रहा है वही क्यों बेस्ट टाइम है रूफ़ रिपेयर करने का। तो इसको उसका ऑपोजिट सोचो, भाई अगर सन शाइन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? डार्कनेस होगा, रेनफॉल भी हो सकता है, रेनफॉल या थंडर स्टॉर्म, है ना। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसके विपरीत, इसके ऑपोजिशन में शाइनिंग सन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरह से सोचोगे तब समझ आएगा कि क्यों ये बेस्ट टाइम है रूफ़ को रिपेयर करने का। शाइनिंग सन आपको बताता है कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये इसलिए भी बेस्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे जो हम एक्शन लेते हैं वो क्विक फिक्सेस नहीं होते हैं। भाई जब बारिश हो रही है और पता चल रहा है आज तो बारिश होगी, तो पता चल रहा है कि हमारे रूफ़ में छेद है या कुछ रिपेयर करना है, तो आप वहाँ पे कुछ भी क्विक फिक्स लगा दोगे, है ना, कि ऐसे कर लो, यहाँ पे पन्नी रख लो या जो भी व्हाटएवर, ठीक है। तो बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें ऐसा इन्वेस्ट करोगे कि वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है शाइनिंग सन, आपको क्लैरिटी रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से अवेयरनेस रिप्रेजेंट करता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में ये रीज़न आए ही, बट ज़रूरी ये है कि आप ये वाला डायमेंशन लिख के आओ, ठीक है। आपके पास और भी अगर रीज़न्स आ रहे हैं कि वाई इज़ दिस द बेस्ट टाइम, आप उसको इंक्लूड करो। दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि अगर आप शाइनिंग सन आपको प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस के बारे में बताता है, ठीक है, ताकि आप प्रोएक्टिव स्टेप्स ले पाओ और एडवर्सिटी के लिए प्रिपेयर हो पाओ, ताकि आपकी लाइफ स्टेबल और हारमोनियस हो। ये भी आप लिख सकते हो, कार्पे डिएम, सीज द डे, कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में रहो, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फालतू डिले मत करो, एंड लिव लाइफ फुल्ली एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये हो गया वाई कॉम्पोनेंट। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा है, हर एस्से में हम देखेंगे, बहुत इजीली आप लिखना शुरू कर दोगे। अब ये बेसिक से डाउट्स होते हैं कि भाई पैराग्राफ हो गया तो पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। इंट्रो एंड कंक्लूजन आपके थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, 1.5 पेज बताया मैंने। कंक्लूजन थोड़ा इतना 1.5 पेज मत लिखो, क्योंकि कंक्लूजन एक्चुअली क्या होता है, कंक्लूजन में अगर वे फॉरवर्ड भी आपका जुड़ा हुआ है तो आपका 1.5 पेज तक जा सकता है। अदर पैराग्राफ्स के लिए ट्राई टू बी वेरी सेफ़,
कि भाई नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, एक पेज में 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। अब पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, हम क्यों पैराग्राफ चेंज करते हैं? तो सिंपल सा आइडिया है कि एक आइडिया मतलब एक पैराग्राफ। जैसे ही आप अपना आइडिया चेंज कर रहे हो, आप अपना पैरा चेंज करो। बीच बीच में फालतू में मत सोचो कि अब मैं पैराग्राफ चेंज कर दूँ, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। फ़्लो कैसे मेंटेन करें, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कुछ कुछ, है ना, ये आपने बहुत देखा होगा, ये भी कनेक्टिंग वर्ड है। बट बहुत ज़्यादा क्रूडली इसको यूज़ मत करिए कि पॉलिटिकली, मोर ओवर सोशली, ऑल्सो ये कल्चरली, ऐसे मत करो, ठीक है। थोड़ा आइडियाज़ को कनेक्ट करो, आइडियाज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि जैसे अगर आपने बोला कि कुछ हिस्टोरिकली हो गया है और वो फिर आपने प्रेजेंट सोसाइटी में भी देख रहे हो, तो बताओ, मतलब इस तरह से लिख दो कि द स्टैटिक, लिख नहीं रही हूँ, टाइम लगेगा। सो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको कि द स्टैटिक चेंजेस इन हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ टुडे इन एनवायरमेंटल एरिना, जो भी है, जो भी आपका आइडिया है दिमाग में, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे हुआ है तो आप बोलो कि ये नेशन लेवल पे भी होता है। तो इस तरह से आइडिया को कनेक्ट करो। फिर एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू कनेक्ट करो, देखेंगे कैसे, वील सी इट लेटर। फिर आप आ जाते हैं आगे के लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा, इसके ही बारे में थोड़ा और बात होगी डिफरेंट एसे के टॉपिक से। हाउ डायमेंशन, जो कि आपका मेन बॉडी पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसे लिखें कैसे, क्या लिखें इसमें, कैसे लिखें, किस तरह से हम आइडिया सोचें, किस तरह से हम उसमें एग्जाम्पल डालें। डिफरेंट डायमेंशंस, ये जो इसके मार्क्स होते हैं, इसको कैसे हम ओपन करें, ब्रेक करें, कंटिन्यूएशन में कैसे लिखें। फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एंटीथीसिस कैसे आइडेंटिफाई करें और कितना लिखें, कैसे लिखें। थोड़ा हम बात करेंगे चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड्स की, कितना लिखें, कैसे लिखें, एंड देन ऑब्वियसली कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपके आगे के लेक्चर में आएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये तो हो गया आपका आज का ओरिएंटेशन सेशन। अब थोड़ा सा काम दे देते हैं। इंट्रो पे हमने थोड़ा बात की, इंट्रोडक्शन पे लिखिए। ये एक टॉपिक आया था, ये आपने काफ़ी देखा होगा, इंस्टाग्राम कैप्शंस, है ना, टेलीग्राम पे कुछ बॉटल की फ़ोटो भी शेयर हुई थी, उस पे ये कोटेशन लिखा था। तो ये काफ़ी इजी सा है, काफ़ी रिलेटेबल है, मज़ा आएगा लिख के। तो इस पे कुछ इम्प्रेसिव सा इंट्रो लिखने का ट्राई करिए, ठीक है। और अगर आपको उस पर रिव्यू चाहिए तो ये थिंक IAS चैनल है, इस पे आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके आप इसको सेंड कर सकते हो। प्लीज़ पूरा ऐसे मत लिखिएगा, मैक्सिमम 1.5 पेजेस का सिर्फ इंट्रो लिखिए। सिर्फ अभी इस पे प्रैक्टिस करते हैं पेशेंस के साथ। इस पे आप सेंड कर सकते हो, हम आपका रिव्यू करेंगे, हम आपको फीडबैक देंगे, अच्छा बुरा, क्या सजेशंस हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट सेशंस में वी एज प्रॉमिस्ड वी विल डिस्कस ऑल द PYQs 2023, 22, 2021, 2020, ठीक है। ये मतलब 32 एसेज आपको मिलेंगे पूरा ऐसे ही 30-40 मिनट्स के। थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा तो मे बी थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट उस तरह से हम उसको पूरा उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि क्या क्या इसमें आ सकता है। नाउ so this brings us to the end of the session. Try to do this homework, try to share your this introduction to this particular channel, Think IAS. Refer to the contact section, and there is an email, telegram. You can post your answer directly, send your answer directly to @metalady, METALADY. And thank you and keep studying. All the best.